Okay, namaste to all of you. Is my voice is audible, or do I need to change my settings? Somebody please respond. Yes, audible. So, somebody please take the responsibility of attendance. Okay, 61 Naman, today is your turn to give me provide me absent list, right? Is it fine with you? Naman, is it fine with you? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So in the last class, we discussed initialize single source and
uh, relaxation function, right? So based on these two basic algorithms, we are going to see single source shortest path algorithm, that is Dijkstra and Bellman-Ford, right? So either we can start with the Bellman-Ford or Dijkstra. Both we are going to cover today, right? So, so right now I'm in Dijkstra, so I will start with Dijkstra, right? First, I will, excuse me, I will tell you the algorithm. Then after telling you the algorithm, I would like to show it by an example. And and after that, I would ask you people what is the running time or time complexity of this algorithm, right? So, so my screen is visible to all of you, and be ready with questions because I'm going to ask questions, right? Okay, so Dijkstra algorithm, there are three arguments. First is graph. As soon as I say graph, G, that means set of vertices and set of edges. W means weight matrix, and S means source. That is designated source, whatever I assign by name of S. Right. Then I call the function or call the algorithm initialize single source G comma S. In initialize single source G comma S, what I'm doing, I am designating the S as source. It means shortest path estimate of S is 0. And for rest of vertices, shortest path estimate is infinite. Then, then I've taken an empty set S, phi is means empty set. Then I have taken a Q. In Q, I have put all the vertices of graph, all the vertices of graph along with its shortest path estimate, right? Done. Up to these 3 points, I think there will be no issues with anybody. If somebody is left or not able to catch me up to this point of time, he or she is asked free to ask questions. Okay, great. No response means all okay. Right. Great. So let me move forward. Here, what I'm doing in this while loop, that whenever queue is not empty, queue means whatever I put vertices in this queue, whenever queue is not empty, I'm extracting minimum value from that queue and putting that vertex into S. And after that, whatever vertex I have selected from the queue, I will go to its adjacency list. Adjacency list means all the adjacent vertex, and I will relax each one by one. Suppose two for you there are two vertices W and V. So first I will relax this edge, then I will relax this edge. Right. For each vertex V that is adjacent of you, I am relaxing each of it. Right. So you people hope able to understand this pseudocode or algorithm. Now, let me take an example. If something is left, then you people must be very clear, right? So again and again, I'm telling you all the students, whether CS or IT, that do not put any pressure on your mind, right? So it's better to execute an algorithm, write it on a paper or pen, then whatever algorithm is saying, just you are the processor, just execute it, right? So I always follow this approach, uh, whether anywhere. So first I am writing this algorithm and asking you people also do the same, right? Extra GWS, because I do not need not to write this algorithm, but this is the standard procedure I always follow for the first time students. Initialize single source G comma S equal to 5, Q equal to G dot V, while Q not 5, then use extract min Q, and S is equal to S union U. Okay. For each vertex
V, that is adjacent of U, relax UVW, right? So I'm done with writing. So I hope you people also done with writing. Now straightforward, I come into the example, right? So somebody please help me with doing this question. So let me select any of you. So okay. I'm selecting 62 Namita. Okay, Namita, unmute yourself and please help me to apply Dijkstra algorithm on this graph. Namita, are you? 62 Namita, are you there? 62 roll number Namita Singh 4, are you there? Please mark her as absent. Okay. 60 Manish. Yes, sir. Just help me to apply Dijkstra algorithm on this graph, right? So this is the graph. So in the first step, what I'm doing, initialize single source. In initialize single source, I am starting the shortest path estimate of every vertex as infinite. Infinite, and whatever I have selected as source, for that it is 0. Am I correct or wrong? Just tell me. First step of algorithm was initialize single source, right? In Yes, initialize sir. single source, what we have to do? We have to initialize shortest path estimate of all the vertices. Shortest path. So infinite, and for source 0. Am I right or wrong? जैसा सोर्स 0 होगा और बाकी इनफाइनाइट लेंगे. मैं यही तो पूछ रहा हूँ. मैंने यही बोला कि कुछ और यस बोला? सर. तुम यस सही सर, यही बोला. तो ये बोलो ना कि मैंने सही बताया. हाँ? ठीक. यस सर. उसके बाद मैंने क्या किया, जो एल्गोरिथम हमसे कह रही है हमने वो किया. हमने एक एम्प्टी सेट एस ले लिया, इसमें अभी कुछ नहीं है. ठीक. उसके बाद हमने क्या किया, एक क्यू ले ली. क्यू में क्या किया, ग्राफ के हर वर्टेक्स को रख लिया. क्यू इक्वल टू जी डॉट वी. इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ग्राफ के हर वर्टेक्स को हमने रख लिया. ठीक है, तो वर्टेक्स के नाम क्या है? टी है, यस सर. एक्स है, और बताइए. बताइए, वाई जेड बोलिए तो. सर वाई जेड है. वाई जेड. और एस भी तो है. एस. और कुछ है? नो सर. और हम लोग अच्छे बच्चे हैं तो नीचे सबका शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट लिख लिया. ये इनफाइनाइट बता रहा हूँ, ठीक है. थोड़ा मतलब मेरी माउस से राइटिंग कैपेबिलिटी पे ध्यान मत दीजिएगा. और एस के लिए 0. ठीक. तो हमने क्यू में सारे वर्टिसेस इंसर्ट कर लिए और सबके लिए शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट लिख लिया और सोर्स के लिए 0 लिख लिया. अब एल्गोरिथम में अगला स्टेप मुझसे क्या कह रहा है, जरा देख के बताइए जो आपने लिखा है. एल्गोरिथम का उसके बाद तो लूप चलेगा ना. तो बताइए उस लूप में क्या क्या करना है. वो लूप का पहला स्टेटमेंट क्या है? सर मतलब लूप का तो कंडीशन तो वही है कि जब मतलब नल ना हो जाए. ठीक ठीक. और दूसरा है एक कि एक यूज. मिनट, आराम से इतनी जल्दी नहीं है. आराम से, पहली बार समझ रहे हैं. ठीक है. तो लूप का स्टेटमेंट है व्हाइल क्यू नॉट इक्वल टू 5. क्या क्यू यहाँ पर 5 है? क्यू में एलिमेंट्स है. नो सर. ठीक है, तो व्हाइल की कंडीशन ट्रू हो गई. उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है, हम उसमें से मिनिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. एक्सट्रैक्ट मिनिमम. यस सर. तो इस क्यू में से मिनिमम वैल्यू निकालिए. सोर्स. कैसे आपने पहचाना ये मिनिमम है? सर उसका शॉर्टेस्ट पाथ 0 है ना.
ठीक है, बाकी सब इसीलिए हम लोग ने infinite। शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट लिखा था कि हम शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट को पैरामीटर कंसिडर कर रहे हैं और शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट की वैल्यू को 0 निकालना है। ठीक है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू 0 हुई तो उसको 0 को हमने इससे निकाल लिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, जो वर्टेक्स निकाला उसको एस में रख लिया, एस सेट में, एम्प्टी सेट था इसको यहाँ रख दिया। यही तो है, एस इक्वल टू एस यूनियन whatever vertex we have extracted. Done. Yes sir। Yes, sir. अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो फिर वो फॉर वाला लूप है। फॉर वाले लूप में क्या कर रहे हैं, फॉर वाले लूप में हम लोग कर रहे हैं जो भी वर्टेक्स हमने निकाला है उसके सारे एडजेसेंट वर्टेक्स को रिलैक्स करेंगे। यही तो करेंगे। तो हमने कौन सा वर्टेक्स निकाला है, तो हमने सोर्स निकाला है, एस नाम लो, एस निकाला है। ठीक है, एस निकाला। उसके एडजेसेंट वर्टेक्स टी हैं और वाई हैं और भी कोई है, नो सर। जेड क्यों नहीं है, सर वो जेड वो से white है। एस है, एस से जेड नहीं है, गुड गुड। डायरेक्टेड सारे है। आउटवर्ड जो एजेस होंगी वो एडजेसेंट कंसीडर की जाएंगी, इनवर्ड नहीं कंसीडर की जाएंगी डायरेक्टेड ग्राफ में। राइट, क्लियर। तो हमने दो वर्टेक्स एडजेसेंट है, एक एक करके दोनों को दिखेंगे। तो हम पहले टी पर चलते हैं। ठीक है, टी पर हम रिलैक्स फंक्शन कॉल करेंगे। तो जब हम टी पर रिलैक्स फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, सर रिलैक्स करता क्या है ये नहीं पता। आप अटेंडेंस कटवा देंगे अभी तुम्हारी, और तो कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं। पिछली क्लास में क्या कर रहे थे, सर नहीं ध्यान है, भूल गए शायद। चलो तुम्हारा काम काम हो गया, हम किसी और को पकड़ते हैं। आ जाओ, कोई और आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसको पकड़े यार। 52 जानवी, आप आ जाओ, बताइए रिलैक्स फंक्शन क्या करता है। जानवी, आर यू देयर और जस्ट लॉग इन टू हैव अटेंडेंस। चलिए, कौन बताएगा रिलैक्स फंक्शन क्या करता है। अंकित, ओके अंकित, अनम्यूट करें अपने आप को, बोले। सर रिलैक्स फंक्शन हाँ अंकित, थोड़ा शुरू अपना हुआ वीक माइक में सही करिए, आपकी शॉर्टेस्ट वॉइस थोड़ी निकलता है। सी। अंकित बोले आप बेटा। ग्रेट सर। सर डी और वी में शॉर्टेस्ट पाथ निकलता है। नहीं नहीं अंकित, कुछ आप मिस कर रहे हो। इधर देखिए, मैं चलिए फिर से बताता हूँ। सर याद आ गया। सर इस केस में नहीं नहीं, अब आपका टर्न गया, अब हमारा टर्न है। अब सबको जीरो दे दिया हमने। इधर देखो, एस का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट 0 है, टी का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट इनफाइनाइट है। अगर मैं एस से टी पे जाता हूँ तो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट 0 + 10, शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट ऑफ यू प्लस वेट ऑफ यूवी 10 मिल रहा है। तो जब मैं एस से टी पे जा रहा हूँ तो मुझे बेहतर शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट मिल रहा है ना। तो इनफाइनाइट और 10 में बेहतर कौन सा है, तो मैंने इसको 10 कर दिया। ठीक है, ये एज रिलैक्स हो गई और यहां पर भी अपना चेंज कर लिया, 10 कर लिया हमने। डन। इसी तरह एक और ये एडजेसेंट वर्टेक्स की कहानी खत्म हो गई, दूसरे एडजेसेंट वर्टेक्स पे आए। दूसरे एडजेसेंट वर्टेक्स की कहानी क्या है, एस का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट 0 है, वाई का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट इनफाइनाइट है और वेट ऑफ एच क्या है 5। राइट, तो अब हम क्या कर रहे हैं, वेट ऑफ एस से जब वाई पर जा रहे हैं तो मुझे नया शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट क्या मिल रहा है 5, लेकिन वाई का है क्या इनफाइनाइट। तो बेहतर कौन सा है 5, इसको चेंज कर देंगे और वाई का यहाँ पर भी चेंज कर देंगे। डन।
देखिए इस स्टेप में जिसको डाउट हो मुझसे बात कर लीजिए। कंफर्टेबल एवरीवन? यस सर। अभी भी बहुत से सो रहे होंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, अब कोई मुझे अगला स्टेप क्या करेंगे, कोई कौन बताएगा मुझे? एल्गोरिथम बगल मैंने फिर क्या प्रेशर नहीं लेना है। एल्गोरिथम मैंने देखो इधर लिख के रख लिया, यही उम्मीद मैंने आपसे भी की थी कि आपने लिख के रख ली होगी कि सर ब्रेन पे सर हम लोग आप पीडीएफ खोलो। जो क्यू वाला जो सेट है मतलब लिस्ट है उसमें से हम लोग आदित्य तुम नहीं बोलोगे तो एक ही आदमी से मुझे बात नहीं करनी है। हेलो। कोई और? हेलो आयुषी बोलो, आयुषी आप बोलो बेटा। सर, जो बनाई सर, जो क्यू लिस्ट क्यों बनाई है हम लोगों ने? अरे भाई वाइल लूप पे वापस लौट के आओ ना पहले तो। सर पहले तो वाइल में वापस आओगे ना। हाँ सर। तो वाइल की क्या कंडीशन है? एल्गोरिथम सामने होनी चाहिए, मतलब ऐसे थोड़ी होता है भाई। माइंड में बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है ह्यूमन बीइंग की, मतलब चाहे हम हो या आप। इसीलिए मैंने कहा था एल्गोरिथम बगल में सामने रख लीजिए। वाइल में वापस आए, क्यू नॉट इक्वल टू 5, क्यू एम्प्टी नहीं है। यस एस निकाला है लेकिन टी एक्स वाई जेड है, एम्प्टी नहीं है। ठीक, यस सर। अब क्या करेंगे? सर जो उसमें मिनिमम होगा, जैसे उसमें y का 5 मिनिमम है, ठीक है, तो तो हम वाई को उसको निकाल सोर्स बना लेंगे। एक मिनट निकालने दीजिए, वाई को निकाल लिया, उसमें s में डाल देंगे एस में डाल दिया। और वेरी गुड। उससे जितने भी करस्पॉन्डिंग नोड्स हैं उससे एस्टिमेट करेंगे वो। अरे करस्पॉन्डिंग नहीं, एडजेसेंट। सर उसके इसीलिए रिलैक्स कहा था निकाल कि देंगे। एल्गोरिथम सामने लिख लो भाई, मतलब जो बोलते हैं उसका मीनिंग होता है हर चीज का। ठीक है, एडजेसेंट और उसमें डिफरेंस है। तो वाई के एडजेसेंट कौन कौन से हैं? तो एक ये एज है, tx और z। एक ये एज है और एक ये एज है। 3 एज है ना? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब एक एक को रिलैक्स करते हैं। जेड का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट इनफाइनाइट है, y का 5 है और इस एज की वेट का 2 है। तो अगर हम y से z जाएंगे तो मुझे 7 मिल रहा है। अभी क्या है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट और 7 में बेहतर कौन सा है? 7। हम इसको 7 कर देंगे और यहाँ पर भी चेंज कर देंगे। सर इसका तो वेट 2 है ना? ये कौन अंग्रेज वो आया? वाई से जेड का रुक वेट जाओ, मुझे बात कर दो। ये अंग्रेज कौन आया? पहले बताओ, अच्छा नाम बताओ, मैं समझाता हूँ। हाँ बताइए। समझ गए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे तो समझ समझ गए? नहीं ऐसे कैसे समझ गए, आप बताइए। तो y से देखना था। वाई से नहीं देखना था आपने, रिलैक्स फंक्शन ही नहीं एस पढ़ा से देखना था। है। एस से भी नहीं देखना भाई, तुम लोग रिलैक्स फंक्शन क्यों नहीं सर पढ़ते? वो y का भी सर प्लस होता है वेट, जो y का भी शॉर्टेस्ट मिनिमम एस्टिमेट होता है उसको भी हम ऐड करते हैं। अरे भाई हिंदी में रिलैक्स फंक्शन क्या कर रहा था? एक एच थी यू और वी। ठीक है, यस सर। इसका कुछ वेट था, यहाँ पर 2 है। यू का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट अभी 5 है, वी का अभी इनफाइनाइट है। जब हम रिलैक्स फंक्शन कॉल करेंगे, अगर वेट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट ऑफ यू प्लस वेट 7 प्लस 5 प्लस 2 7 इससे कम होता है या इसका ज्यादा होता है तो हम चेंज कर देते हैं। यही तो रिलैक्स चेंज कर फंक्शन था। देते हैं। हाँ, तो यस 5 सर। प्लस 2 7 इनफाइनाइट से बेहतर है। यस सर। दैट्स व्हाई वी चेंज इट। यस सर। ठीक है, मतलब हर चीज का मीनिंग होता है। मतलब अब अगर मुझे यही करना होता तो मैं पिछली क्लास में रिलैक्स फंक्शन क्यों बताता? उसका रीजन था ना रिलैक्स फंक्शन। तुम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में भी तो डिजिक्स्ट्रा करी होगी। वहां पर क्या वो चंपक वाला मेथड करते थे क्या? एक क्यू नहीं बना सर। लेते थे, उसमें से निकालते रहते थे। यार तो चंपक ही बनोगे सब, हो गया भाई। तरीका होता है जब एक भाई कुरमन ने एल्गोरिथम बनाई, किसी ने उसको कॉपी करके कुछ और बुक बनाई, किसी और ने कॉपी करके चंपक बनाई, किसी और ने कॉपी करके केपीएच बनाई। अब तुम्हें चंपक से पढ़ने का शौक है तुम्हें।
वेरी बैड। जिंदगी में कुछ करना है तो चंपक में आग लगा दो। ठीक, 7 हो गया, सब लोग कंफर्टेबल? ये हमने Yes, करा। sir. ठीक है, अब यस सर। ये वाली एज चेंज कराते हैं। ठीक है, एक्स पे चलते हैं। चलिए एक्स पे मुझे कौन बताएगा क्या हो रहा है? चलिए 5 + 9 14 बेटर इन्फिनिटी सर। यस, ग्रेट। एक्स का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट अभी इनफाइनाइट है, लेकिन अगर हम वाई से एक्स पे जाएंगे तो वी हैव अ बेटर शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट, सो वी विल That is चेंज दिस टू 14. 14। Yes, यप, sir. Yes, एक्स sir. की वैल्यू 14 कर देंगे। 3 पे जाएंगे. डन। Yes, चलिए, sir. दिविशा और आदित्य नहीं बोलेंगे, बाकी कोई भी बोले। वाई से टी में जाएंगे तो क्या होगा? टी भी तो इसका एक एडजेसेंट वर्टेक्स है। सर 5 + 3 8 इज बेटर 8 देन होगा, 10। 8 को 10 को रिप्लेस करके 8 कर देंगे। ठीक है, काजल आप बताइए, 5 + 3 क्या है 8 और टी का एग्जिस्टिंग शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट क्या है? 10 है एग्जिस्टिंग। तो 10 और 8 में बेहतर कौन सा? बेहतर मतलब कम कौन सा है? 8। तो हम इसको 8 कर देंगे। राइट, तो कहाँ गया टी? कहीं होगा, टी को हम 10 से 8 कर देते हैं। इसको भी चेंज करते रहेंगे ना साथ साथ। ठीक, क्लियर? Yes, sir. चलिए अब क्या करेंगे? सर वापस वाइल में जाएंगे. वाइल में पहुंचे, टी एक्स So जेड Q अभी भी अभी बचा भी. हुआ है। ठीक है, Yes, sir. अब मिनिमम को निकालेंगे। Yes, sir. मिनिमम क्या है? तो सर मिनिमम आएगा Z. 7। हाँ, जेड और 7 सेम है। 7, ठीक Yes, है, sir. तो जेड को हमने निकाल लिया। वेरी गुड, Yes. राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इसको सेट में यूनियन कर दे रहे हैं। फिर जो वर्टेक्स हमने निकाला है जेड, Thank you. ठीक है, उसके हर एक एडजेसेंट वर्टेक्स को देखेंगे। ठीक है, तो जेड का एडजेसेंट वर्टेक्स ये जेड है और उसका एडजेसेंट वर्टेक्स एक ही है। नो X. सर, 2 है। सर X S से भी तो है. S भी है। जीरो से, हाँ, जीरो से बेहतर क्या पा जाओगे? हाँ भी है. नहीं, फिर भी जो रूल है वो तो फॉलो करेंगे, देखा तो जाएगा ही। Yes, sir. ठीक है, तो ये तो अभी 14 था ना यहाँ पर। अभी हमने चेंज कहाँ किया? इससे पहले तो 14 था ना। यस सर। ठीक है, Yes, sir. 9 + 14, राइट। तो 7 + 6 13 हुआ और x का भी 14 है, तो इज्जत से इसको चेंज कर देंगे। क्यों किया? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यहाँ भी चेंज कर लिया। Yes, हाँ हाँ, बताइए बताइए, जिसको डाउट है बोलिए। सर मिनिमम लेंगे ना इसको? अब अब्दुल भाई क्या बोल रहे हैं, जरा बताओ, हम समझ नहीं पाए। सर यहाँ पर 13 की जगह पर सर मिनिमम लेंगे ना सर, 5 से। सर S से Y आए, Y से फिर X पे जा सकते हैं। नहीं, आप फिर मैंने कहा कि दिमाग का इस्तेमाल जब तक जरूरत हो नहीं करना है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालने की, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ये है कि जो भी वर्टेक्स हमने एक्सट्रैक्ट किया Q से, उसके जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे उसकी एजेस को रिलैक्स करेंगे। तो जो वर्टेक्स अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया दैट इज Z, तो सिर्फ हमें Z देखना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, दिमाग पे लोड लेना ही नहीं है। ओके सर। ठीक है, समझ गया ना पॉइंट क्या है? ठीक है जी सर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है। ये Z है, इसका शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट 7 है। ठीक है, ये 6 है, इसका शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट 6 है। तो 7 + 6 क्या हुआ? 13। और यहाँ पर 14 है। 13 तो 14 और 13 में बेहतर कौन सा है? बेहतर मतलब कम, मतलब 13 तो हमने यहाँ पे 13 कर लिया और यहाँ पर भी इसको चेंज करके 13 कर लिया। राइट, एक और बचा है, इसको देखो। Z का 7 है। ठीक है, यस सर।
और एस तक जाने का रास्ता जो एज है उसका 7 है, तो 7 + 7 14 है 0। 0 14 में बेहतर कौन सा है? 0 0 0 जिसको अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको मतलब बढ़िया से समझाऊं, मजा आ जाएगा उसको। कोई है? अरे मतलब अगर कोई बहुत ही बड़ा कलाकार होगा तो लखनऊ में खड़ा है, उसे लखनऊ आना है तो जाएगा कानपुर, फिर लौट के आएगा। यही बात तो हो रही है। अब सोर्स में हो तो सोर्स से बेहतर शॉर्टेज पाथ एस्टिमेट कहाँ हो सकता है? कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक हो गया? यस सर। अब कहाँ जाएंगे? वापस वाइल में। while loop में तो वाइल लूप में क्या क्या बचा है? टी और एक्स। टी और एक्स है। तो टी और एक्स में मिनिमम क्या है? T है सर। टी को यहाँ रख लीजिए, क्यों हम गायब कर दिए। राइट, अब क्या करें? दिमाग नहीं लगाना, जो एल्गोरिथम कह रही हो करना है। सर टी के एडजेसेंट जो है, टी है कहाँ? टी के हाँ, टी के टी के एडजेसेंट एडजेसेंट एक्स है यस और सर x सर भी है वाई वाई है। सर एक्स और वाई। बस दो ही है। लेकिन सर वाई तो ऑलरेडी एस में हम लोग मतलब उसका निकाल चुके हैं ना, तो वो ऑलरेडी मिनिमम हो गया। ये कौन है? ये कौन अंग्रेज है? अरे भाई, फिर आपने कहा दिमाग नहीं लगाना है, जो एल्गोरिथम कह रही हो करना है। अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई? सर ये पूछना था कि सर नहीं, जो पूछना हमने नहीं, एस तू अभी सेट पूछना, बनाया था। अभी पूछना नहीं है भाई। एल्गोरिथम क्या कह रही है वही तो हम करेंगे ना, कि हम अपना ज्ञान उसमें लगाएंगे। यस सर। एल्गोरिथम तो ये कह रही है जो वर्टेक्स हमने निकाला उसके सिर्फ एडजेसेंट वर्टेक्सेस को रिलैक्स करना है। ठीक है, अब रुक जाइए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ठीक है, एडजेसेंट वर्टेक्स एक्स। अब अभी इसका 13 है, अभी इसका 13 है और वाई। ठीक है, यस सर। तो 8 + 1 9 है, हमारा पहले वाला 13 है, तो 9 और Yes, 13 में sir. बेहतर कौन सा है? 9 9 9 तो है। 13 को भुला के 9 को रख लिया। ठीक, यस सर। एक्स पे देख लो, 8 + 2 10 है, पहले से 5 है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। यस सर। हाँ दिविशा, अब बोलो तुम क्या कह रही थी? सर एल्गोरिथम तो ठीक है, लेकिन सर जैसे हम लोग को अगर ये ग्राफ से बना के दिखाने होंगे तो सर हम लोग थोड़ा टाइम बचाने के लिए ये देख सकते हैं ना कि जो एस सेट हम लोगों ने लिया था उसमें जो जो वर्टिसेस आ चुकी हैं वो तो पहले से ही मिनिमम हो चुकी हैं ना, तो जब हम एडजेसेंट देखते हैं तो हम दो मेथड आपस में मिक्स मत करो। ओके। ठीक है, टाइम की कौन सी कमी है भाई आप लोग के पास, ये बताइए। टाइम की कहाँ कौन सी कमी है? ठीक है, ये सब फिर वही बात है, मतलब जो माइंड में घुस गया है चंपक, उसे निकालिए जल्दी से। ओके सर। बात समझे ना? इसमें सिंपल से मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की गई है। जो वर्टेक्स आपने एक्सट्रैक्ट किया, अब मैं समझ गया आप लोग का इशू क्या है। मतलब आपका इशू ये है कि आप उसको भूलिए जल्दी से, उसको चंपक। आपने जो वर्टेक्स एक्सट्रैक्ट किया उसके जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको आपको रिलैक्स करना है। ठीक है, इससे क्लियर क्या बात हो सकती है? क्लियर? चलो अगला स्टेप करते हैं, उसमें शायद क्लियर हो जाए। अब फिर वाइल में गए, वाइल में एक वर्टेक्स बचा है, क्यू एम्प्टी नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको एक्स को निकाला, इसको एक्स यहाँ पे रख दिया, और एक्स कहाँ पर है? एक्स यहाँ पर। एक्स के एडजेसेंट वर्टेक्स को रिलैक्स कर देते हैं। एक्स के एडजेसेंट वर्टेक्स एक जेड है, तो 9 + 4 13 होता है, तो 7 पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, और तो कोई इसका एडजेसेंट वर्टेक्स। अब सब लोग ध्यान दीजिएगा। फाइनली जब हम सब कुछ कर चुके, अब वापस वाइल पे आएंगे, क्यू एम्प्टी हो चुकी है, तो आप वाइल से बाहर आ जाएंगे। यस सर। जब आप वाइल से बाहर आएंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एस आपके पास हर एक वर्टेक्स का एक शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट अवेलेबल है। विद रिस्पेक्ट टू एस हर एक वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट अवेलेबल है, टी एक्स वाई जेड। राइट, ठीक है, टी एक्स वाई जेड। टी का 8 है विद रिस्पेक्ट टू एस। देख लो, एक सीधा रास्ता है 10, एक 5 + 3 8, तो 8 वाला ही बेहतर है ना। Yes, इस एल्गोरिथम ने दे दिया डिजिट्स में। 5
इसका देखो x का, एक 10 + 1 9 है, सॉरी 10 + 1 11 है, और एक देखो 5 + 3 8 + 1 9। तो इसने शॉर्टेस्ट ही दिया। इसी तरह z का, इसी तरह सवाल का, यानी ये एल्गोरिथम जब एग्जीक्यूट हो चुकी तो विद रिस्पेक्ट टू s इसने हर एक वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट दे दिया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. That's why it belongs to single source shortest class of algorithm. हमने जो भी सोर्स सेलेक्ट किया with respect to that source, हमने every other vertex का shortest path निकाल लिया। Right? Comfortable? कोई डाउट आप पूछिए। No, sir. चलिए अब क्वेश्चन नोट करिए आज के करने के लिए। इसी अभी सब अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लो थोड़ा सा। इसी क्वेश्चन में आप सब लोग क्या करोगे, एस के लिए आपने शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट निकालना है, और इसी तरह जेड और टी के लिए निकाल लो। कोई दो वर्टेक्स के लिए आप निकाल लो, एल्गोरिथम सामने रख के प्रैक्टिस कर लो, बस जिंदगी में दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? और मुझे भेजोगे कहाँ? व्हाट्सएप ग्रुप में। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, एस के लिए हमने दिखा दिया, कोई दो वर्टेक्स अपने मन से चुन लीजिएगा, चाहे टी ले लीजिएगा, चाहे एक्स ले लीजिएगा, चाहे वाई ले लीजिएगा, चाहे जेड ले लीजिएगा। ठीक है, मुझे करके भेज दीजिएगा। अच्छा डिजिक्स, इसका रनिंग टाइम आप बताओगे, क्योंकि सीएस वालों को मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रनिंग टाइम इतना ज्यादा मैंने डिस्कस किया है तो वो अपने आप बता देते हैं देख के। अगर आप नहीं है तो अच्छा ई और वी के टर्म्स में आएगा रनिंग टाइम, ई लॉग वी या वी लॉग ई, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, या ई स्क्वायर आएगा, वी आएगा, कुछ ऐसे आएगा ना। इतना तो अंदाजा लग ही रहा होगा ना कि लूप में आप जा रहे हैं, लूप में आप वर्टिसेस के साथ खेल करना है, एजेस के साथ खेल कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको एक बार देखिएगा और बताइएगा। ये दो क्वेश्चन तो मुझे चाहिए ही चाहिए आज, इसमें कोई मुझे इफेंट बट नहीं है। और डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का एक कंस्टेंट ये है कि ये एल्गोरिथम तभी लग सकती है जब सारी एजेस का वेट पॉजिटिव हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव वेट साइकिल को हैंडल करने की कोई मैकेनिज्म नहीं है। राइट? अगर एक भी एज का वेट नेगेटिव है तो डिजिक्स्ट्रा फेल है, नहीं लगा सकते। डन। तो अटेंडेंस मुझे एब्सेंट लिस्ट जिसका भी मैंने नाम लिया वो भेज रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज आई वांट टू कवर टुडे, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को डाउट है हमसे डिस्कस करिए। इफ नॉट देन नमस्ते, फिर मिलेंगे।